ऑलराइट, तो हम कर रहे हैं। हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 11th चैप्टर पे हैं हम, जिसका क्या नाम है? लॉर्ड रिटर्निंग टू द्वारका। राइट। और उसमें हमने देखा, आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आज इसका 38th और 39th दो वर्सेस आज करेंगे, और उसके बाद दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो अभी इसमें देखा हमने कि जैसे जब भगवान कृष्ण द्वारका आए वापस हस्तिनापुर से, तो उसके बाद वो कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं सबसे। राइट, हमने सबसे सबका देखा, उनकी माता, उनके पिता, उनके उनके बेटे। ठीक है, अब फाइनली हम उनके इंटरेक्शंस, हमने लास्ट टू क्लासेस में हमने देखी थी उनकी इंटरेक्शंस विद देयर क्वींस, विद देयर वाइफ्स, विद हिज वाइफ्स। हाँ, तो अभी लास्ट के दो वर्सेस हैं, तो इसमें देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्सेस हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे अ, कि, भगवान के बारे में जानना कितना मुश्किल है, और वो कैसे उनकी इंटरेक्शन हो रही है अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। तो विल स्टार्ट विद वर्स नंबर 38। एतदीशनामीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। ट्रांसलेशन: This is the divinity of the personality of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken the shelter of the Lord do not become influenced by material qualities. Alright, थोड़ा पिछला वर्ष पढ़ लेते हैं अगर याद ना हो तो। एक और पीछे जाते हैं। हाँ, although the queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite all their magical feats and attractions, they could not agitate the senses of the Lord. ठीक है, अभी उनकी वाइफ्स के बारे में बात हो रही है। इतना सब कुछ होते हुए भी दे कुड नॉट एजिटेट द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। अब उसका आंसर दिया जा रहा है कि क्यों भाई? बिकॉज लॉर्ड इज, दिस इज द डिविनिटी ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्वालिटीज ऑफ द material नेचर, इवन दो ही इज इन कॉन्टेक्ट विद देम। देखेंगे कैसे। हाँ, हिज purport by his divine grace, शिला प्रभुपाद की जय। Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Yes, Mata. Just give me 1 second, huh, Prabhu? Yeah, take your time, Mata. In the Vedas and Vedic literature, Shruti and Smriti, it is affirmed that in the divinity there is nothing material. He is transcendental, Nirguna only. Give me 1 second, huh, Prabhuji. The Nirguna, only the supreme cognizant. Cognizant Hari. Hari, or the personality of Godhead, is the supreme transcendental person situated beyond the ranges of material affection. These statements are also confirmed even by Acharya, Acharya Sankara. One may argue that his relation with the goddesses of fortune may be transcendental, but what about his relation with Yadu dynasty? Being born in that family, or his killing the non-believers like Jarasandha and other asuras directly in the contact with the modes of material nature? The answer is that the divinity of the personality of Godhead is never in contact with the qualities of material nature in any circumstances. Actually, he is in contact with such quality. Actually, he is in contact with such qualities because he is the ultimate source of everything. Yet, he is above the action of such qualities. He is known, therefore, as Yogeshwar, or the master of mystic power, or in other words, the all powerful. Even his learned devotees are not affected by the influence of the material modes. The great six Goswamis of Vrindavan all came from greatly rich and aristocratic families. But when they adopted the life of
mendicants or at Vrindavana. Superficially, they appear to be in the wretched condition of life, but factually, they were the richest of all in spiritual values. Such Mahabhagavatas or first great devotees, although moving amongst men, are not contaminated by honor or insult, hunger or satisfaction, sleep or wakefulness, which are all resultant, resultant actions of the three modes of material nature. Similarly, some of them are engaged in worldly dealing, yet are unaffected. Unless, unless those neutralities of life are there, one cannot be considered situated in the transcendence. The divinity and his associates are on the same transcendental plane, and their glories are always sanctified by the actions of Yogmaya, or the it, internal potency of the Lord. The devotees of the Lord are always transcendental, even if they are sometimes found to have fallen in their behavior. The Lord emphatically declares in Bhagavad Gita 9.30 that even if an unalloyed devotee is found to be fallen due to previous material contamination, he is nevertheless to be accepted as fully transcendental because of his being engaged 10% in the devotional service of the Lord. The Lord protects him always because of his rendering services unto him. And the fallen conditions are to be considered and the fallen conditions are to be considered accidental and temporary. They will vanish in no time. हम्म, Haripol. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑलराइट, सो काफी इंटरेस्टिंग वर्स है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं इम्प्रेस हुए। जो हमने लास्ट वर्सेस में देखा था कि क्वींस को देख के और वो सब चीजों से, बिकॉज दैट इज द डिविनिटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्वालिटीज ऑफ द मेटीरियल नेचर इवन दो ही इज इन कॉन्टेक्ट विद देम। अब ये समझना थोड़ा टेक्निकल है कि वो मटेरियल मटेरियल नेचर में तो आए हैं वो, ठीक है। और मटेरियल चीजों, जैसे हम मैटर को टच करते हैं ना, वी बिकम कंटेमिनेटेड। व्हेन आई से वी बिकम, वी मींस सोल। सोल जब मैटर के साथ टच होती है तो वो कंटेमिनेट हो जाती है। हम कंटेमिनेटेड हैं, वी आर इन द कंटेमिनेटेड कंडीशनड स्टेट। क्यों? क्योंकि हम हमारी मैटर को एंजॉय करने की प्रवृत्ति थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आके हम मैटर को एंजॉय करे जा रहे हैं और यहीं पर फंस के रह गए हैं। वेयर एज दिस इज नॉट द केस विद कृष्णा। कहाँ लिखा है ये? वो बोल रहे हैं वेदास एंड वैदिक लिटरेचर्स। प्रभुपाद देखो कितने, क्या उनकी वर्ड्स की वो देखो आप, कि ऐसा नहीं उन्होंने लिखा वेदास, वेदास एंड वैदिक लिटरेचर। सो वेदास क्या है? श्रुति। और वैदिक लिटरेचर्स क्या है? स्मृति। अब श्रुति और स्मृति क्या होते हैं? श्रुति इज समथिंग विच यू डायरेक्टली लिसन फ्रॉम द लॉर्ड, दैट इज श्रुति। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता, दैट इज डायरेक्टली स्पोकन फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ द लोटस लिप्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। और जितने भी वेदास हैं वो भगवान के मुख से निकले हैं, राइट। तो वो आते हैं श्रुति में। और स्मृति में क्या आते हैं? जो कि अ, आचार्यों ने और जो भक्तों ने आपस में कन्वर्सेशंस करी है, ठीक है, वो वो वैदिक लिटरेचर्स में आते हैं। और दोनों ने क्या कंफर्म किया है?
दैट डिविनिटी इज, देयर इज नथिंग मटेरियल उसमें। उनके उनके जो भी यहाँ पर आके उन्होंने पास टाइम किए हैं उसमें कुछ भी मटेरियल नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रांसीडेंटल। ही इज निर्गुण। निर्गुण मीन्स ही डजंट हैव एनी गुण। विच गुण्स? देयर आर थ्री गुण्स, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। About the three modes, about the three Yes, modes. above the, yes. So he is above the three modes. He doesn't have any of these good, any of these modes or gunas, right? And अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? जब या तो मैं, अब अगर मैं मैटर को टच कर रहा हूँ तो आई विल बी अफेक्टेड बाय दैट। बट अगर आप देखो, ये तो भगवान की बात हो रही है। अगर आप आसपास अपने देखो, इसमें स्काई की एग्जांपल काफी कॉमन आती है कि जो आकाश है, आकाश, पानी जो है, पानी आकाश के अंदर ही है। बट क्या आकाश गीला होता है उससे? नहीं होता। ऑल दो पानी जो है वो आकाश के अंदर है, फिर भी आकाश गीला नहीं हो रहा है। तो ये तो भगवान, ठीक है। और आगे प्रभुपाद क्या दे रहे हैं कि भगवान तो छोड़ो, आगे उनके जो डिवोटी हैं, जो उनके डिवोटी हैं वो भी अफेक्ट नहीं होते। डिवोटीज हु हैव टेकन द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड डू नॉट बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मटेरियल क्वालिटीज। एक्चुअली इस पे बाद में आते हैं। तो अभी बात कर रहे थे क्यों नहीं होता ऐसा। इट्स बिकॉज कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है वहीं पर आप हो। इट इज सेड दैट यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। अब कई बार हम बोलते हैं ना, हमें बचपन में डांट पड़ती थी ना क्लास में। टीचर बोलता था, तुम यहाँ क्लास में हो, कहाँ हो तुम? क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा शरीर वहीं होता है, लेकिन हम ख्वाबों ख्यालों में कहीं और ही होते हैं। ठीक है ना, मैं कहीं और ही हूँ, तभी टीचर डांटती होती है कि कहाँ हो तुम, क्लास में हो भी तुम? सो द सेम वे, यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। तो शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, वेयर आर यू हियर? प्रभुपाद said, no, I am in Vrindavan. Because it is said that Vrindavan is not a place, it is a consciousness. It's a Vrindavan consciousness. तो अभी जब मम्मी की डेथ हुई तो जय सच्ची प्रभु से बात हो रही थी मेरी बाद में। तो उन्होंने बोला, कहते, जब मम्मी की डेथ हुई तो मेरी इनिशिएशन हो रही थी, मेरी दीक्षा हो रही थी वृंदावन में। तो जय सच्ची प्रभु ने मुझे बोला, मैं जब उनको मैंने बताया तो वो आए घर, 5 घंटे बैठ के गए वो जब उस टाइम पे। तो देन ही सेड के, प्रभु, आप उस टाइम पे, जब मम्मी की डेथ हुई, एट द टाइम ऑफ द डेथ आई वॉज इन वृंदावन। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप वृंदावन में थे? मैंने कहा यस। तो कहते, "आप जाते हुए सबसे जो अपना, जब बंदा जाने लगता है तो उसको जो सबसे प्रिय होता है वो उसको याद करता है। और एक्चुअली मुझे बताया भी था कि वो पूछ रहे थे, कहते कहाँ है वो? तो कहते हमने बताया कि वो वृंदावन गया हुआ है। तो कहते एट द टाइम ऑफ द डेथ शी वॉज रिमेम्बरिंग यू। आई सेड यस। सो ही सेड कि, सो वेयर शी इज, जहां पर, और तू कहाँ है? कहते वृंदावन में। तो कहते वो कहाँ पर पहुंच गई? वृंदावन में। उस टाइम पे मुझे बात नहीं समझ में, बट अब जब मैं ये पढ़ रहा था, देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड विद, जब मैं इस लेक्चर की तैयारी कर रहा था, तो इट्स सेम। तो उन्होंने बोला यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। तो जहां पर तुम्हारी, तो उन्होंने बोला कि शी वॉज इन वृंदावन। और जिसकी कहते डेथ वृंदावन में या बर्थ वृंदावन में होता है, वो वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता। तभी मेरे गुरु महाराज ही मेक श्योर कि वो ज्यादा मेलबर्न में भी देते हैं, बट ज्यादातर ही प्रेफर्स टू गिव इनिशिएशन इन वृंदावन। बिकॉज व्हेन यू गेट इनिशिएशन इन वृंदावन, इट्स इनिशिएशन इज व्हाट, योर सेकंड बर्थ, राइट? सो व्हेन दैट्स योर सेकंड बर्थ, एंड इफ यू गेट दैट इन वृंदावन, you won't come back into this material world again. So that's the same case with all the devotees as well, जो इतनी प्रेम की अवस्था में होते हैं, तो वो यहाँ पर रहते हुए भी, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी, दे आर इन वैकुंठा। तो डिवोटीज, दीज आर द डिवोटीज हु हैव
टेकन द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड डू नॉट बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल क्वालिटीज। और उन्होंने आगे एग्जांपल भी दिया है। हाँ, यहाँ पे द ग्रेट सिक्स गोस्वामीज, हाँ ये द ग्रेट, नहीं इस पे बाद में आते हैं, उन्होंने एक बार ऊपर भी दिया था कि जो डिवोटीज हैं उनको भी मटेरियल नेचर अफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को क्या मटेरियल नेचर अफेक्ट कर रही थी? नहीं। वो जैसे ही उनका बर्थ हुआ, वो उठ के ऐसे ही नेकेड वो निकल गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो कौन है, लोग उनको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बिकॉज दे ही वॉज नॉट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द बॉडी, राइट? दैट इज वाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? अगर एक बार इसकी ना मैंने एक और सारार्थ दर्शनी भी निकाली थी इसकी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है इसमें। अ, ये रही, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। Well, let us agree that Lord's pastime with women are non-material because the women belong to the चित शक्ति। आई थिंक ये भी यहाँ पर भी लिखा है उन्होंने, प्रभुपाद ने भी ये लिखा है कि वन मे आर्ग्यू दैट हिज रिलेशन विद द गॉडेस ऑफ फॉर्चून में बी ट्रांसीडेंटल। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा चलो, ये आर्ग्यू कर सकते हो कि भगवान की इंटरेक्शन विद देयर विद हिज क्वींस इज ट्रांसीडेंटल बिकॉज क्वींस भी ट्रांसीडेंटल हैं और भगवान भी ट्रांसीडेंटल है, तो दोनों आर बोथ आर स्पिरिट। बट वो कह रहे हैं व्हाट अबाउट द नॉन बिलीवर्स लाइक जरासंध, वो जरासंध के साथ भी इंटरेक्ट करते थे, वो और असुरों के साथ भी इंटरेक्ट करते थे, तो क्या तब 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 वो कंटेमिनेट नहीं हुए? तो द आंसर इज नो, तब भी नहीं हुए वो, तब भी नहीं हुए, बिकॉज अबव ही इज अबव द एक्शंस ऑफ सच क्वालिटीज। वो उनसे जो तीन मोड बने वो उन्हीं से ही बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्राइम मिनिस्टर कह लो या एक कोई गवर्नर अगर एक जेल में जाता है, तो वो जेल में जाने का मतलब क्या है? वो कई बार जाता है जेल में कि प्रेसिडेंट जाता है ना, तो वो क्या देने जाता है? मर्सी, वो क्या बोलते हैं उसको, कि उसको वो सजा उसकी कम करने के लिए जाता है कई बार प्रिजनर्स की। तो अगर कोई देखे जाके कि अच्छा प्रेसिडेंट तो जेल में ही है, तो उसने भी कोई कोई कांड किया होगा तभी वो जेल में, whereas that is not the case. Although he is roaming among the thieves, among the prisoners, but he is not a prisoner. He is above that. So same way, कृष्णा although it looks like कि वो हमारे बीच में ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इनके साथ जरासंध असुरों के साथ लड़ रहे हैं, यदु यदु की डायनेस्टी में बॉर्न हुए हैं, बट ही इज अबव दैट, ही इज अबव दैट। और सेम वे उन्होंने क्या बोला, एक बार चलो ये पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। Let us agree that Lord's pastime with women are non-material because the women belong to the Chit Shakti, right? But he appeared that the material in the material Yadu family in the material world and perceived with his senses material objects such as form and sound belonging to demons like Jarasandh who are material. Therefore, it cannot be denied that he is associated with gunas. So this verse is the answer. क्या बोल रहे हैं? द पावर ईशानाम, ईशानाम ऑफ द लॉर्ड इज, पावर क्या है लॉर्ड की? ऑल्दो सिचुएटेड इन प्रकृति ही हैज नो कॉन्टेक्ट विद द प्रकृति, राइट? व्हाट आर दीज गुणास? दे आर सिचुएटेड इन हिम, राइट? ही इज सिचुएटेड इन द गुणास एंड द गुणास आर ऑल्सो सिचुएटेड इन हिम, बट ही हैज नो कॉन्टेक्ट विद द गुणास, जैसे मैंने उसके प्रिजनर और गवर्नर की एग्जांपल से समझाया। फिर वो क्या कह रहे हैं? द लॉर्ड इज सेड टू बी विदाउट गुनास दो ही इज द बेसिस ऑफ द होल मटेरियल रेल्म एंड द कंट्रोलर ऑफ इट। साक्षी चेता केवलो निर्गुणा च, द लॉर्ड इज द विटनेस कॉन्शियसनेस एंड कंप्लीटली विदाउट गुणास, श्वेताश्वर उपनिषद में बोला है। फिर वाद्यो न संसिते यत्र च प्रकृता गुणा, द मटेरियल गुणास ऑफ सत्व रजस एंड तमस डू नॉट एग्जिस्ट इन द लॉर्ड, क्योंकि ये गुणा ये मटेरियल गुणा है। और भगवान की बॉडी किससे बनी है? सच्चितानंद से, उसमें जगह ही नहीं है इन मटेरियल गुणों गुणों के लिए, क्योंकि दीज गुणास रिजाइड इन द मटेरियल बॉडी। उनके पास मटेरियल बॉडी नहीं है तो इनके पास जगह ही नहीं है इनको रखने की, विष्णु पुराण में कहा।
फिर आगे श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है? हरीर ही निर्गुणा शक्षत पुरुषा प्रकृत परा, द लॉर्ड इज डिवॉइड ऑफ गुणास, कंप्लीटली बियॉन्ड प्रकृति। सो वाई इतने सारे रेफरेंसेस क्यों दिए हैं? श्रीमद् भागवतम का रेफरेंस, विष्णु पुराण का रेफरेंस, श्वेताश्वर उपनिषद का रेफरेंस, जस्ट टू स्ट्रेस दिस पॉइंट, क्योंकि ये बड़ा कॉमन आता है। इट इज़ वेरी कॉमन कि कृष्णा तो हाँ रासलीला रचाई है उन्होंने, तो ऐसे घूमे हैं गोपियों के साथ, तो उन्होंने भी इंजॉय किया है, उनकी भी नॉर्मल वाइब्स थी, बट दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज ट्रांसीडेंटल। यस माता जी। Prabhu, sorry, give me 1 second. Can you hear me? यस So, यस। हम लोग भी we can't also touch soul, so that is also understandable from there, no? Because soul cannot be touched by us. Soul पे भी कोई असर नहीं होता ना material. आई थिंक करेक्ट। हमारे सोल पे होता है बट सुपर सोल पे नहीं होता है, मैं राइट? नहीं, हमारी सोल पे भी नहीं होता है। उसका आंसर अब पैराग्राफ के एंड में है, उसका आंसर कि हमारी सोल कैसे अफेक्ट हो रही है और कृष्णा जो कि सुपर सोल है वो कैसे नहीं अफेक्ट हो रहे। अभी अभी आंसर आएगा माता जी, आई होप आ जाएगा, नहीं आएगा तो विल डिस्कस अगेन। इट इज जस्ट लाइक द इंटेलिजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट द लॉर्ड, तद आश्रय बुद्धि ही एंड ऑलवेज रिमेंबर्स हिम। Though the intelligence is situated in Prakriti and is situated in gunas of Sattva, Rajas, and Tamas, while being contented, praising or criticizing, while being full or afflicted with hunger and thirst, while waking, sleeping, and deep sleep, it is not connected to the gunas because of its indifference to the gunas. That is the key point. Indifference. इसमें नेक्स्ट लाइन में समझ आएगा। इन द सेम वे, दो द लॉर्ड एक्सेप्ट द मटेरियल ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, he is not affected by them because he is devoid of attachment to them. That is the key point. He is devoid of the attachment to them. हम क्या हैं? हम इस जगत में आए हैं इन मटेरियल नेचर को एंजॉय करने के लिए, उनके साथ हमें मटेरियल नेचर के साथ अटैचमेंट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ, मटेरियल लोगों के साथ, मटेरियल रिलेशनशिप्स के साथ। दैट इज व्हाई वी आर अफेक्टेड, वेयर एज ही इज डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम देम, इवन हिज प्योर डिवोटीज। ठीक है, प्योर डिवोटीज में भी इंटेलिजेंस आ जाती है जिससे कि वो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कोई प्रेज कर रहा है या उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, उनको भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है, उनको किसी भी चीज से कोई भी अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि इसमें अब वापस इसमें आते हैं, उनमें क्या एग्जांपल दे रहे हैं? हिज लर्न डिवोटीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल मोड। इसकी एग्जांपल दे रहे हैं, 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। अब ये 6 गोस्वामी, दे आर वेरी वेरी रिच, स्पेशली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। दे आर वेरी, दे केम फ्रॉम वेरी अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। बट उसके बाद क्या हुआ? वो वृंदावन में जाके पेड़ के नीचे बैठे। ऐसा भी नहीं कि 1 BHK ले लो, चलो 2 BHK ले लो, हाँ थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, 5 बेडरूम हाउस से 1 बेडरूम हाउस में आ जाता हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। हाँ, जैसे हमारे जैसे तो बोलते हैं ना कि चलो यहाँ सबर्ब में है, पॉइंट कुक में बड़े से 4 बेडरूम हाउस में, तो टेम्पल के पास 1 बेडरूम हाउस में जाना मुश्किल लगता है। तो वो भी नहीं उन्होंने सोचा कि 1 बेडरूम में चले जाएं, ही दे डायरेक्ट अंडर द ट्री वहां जाके बैठे हैं वो। क्यों? क्यों बैठे? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और मोर देन दैट, उन दे आर गेटिंग मच मोर over there than they were getting in their bungalows. That is why they left, isn't it? So that is the point. हम यहाँ पर आए हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, और जब वो होती है तो मजा आता है, नहीं होती तो दुख लगता है। Whereas ये कृष्ण पृष्ठाया भूतले, शिला प्रभुपाद जैसे महाभागवत, द फर्स्ट ग्रेट डिवोटीज, शिला प्रभुपाद जैसे, तो तभी बोलते हैं ना, कृष्ण पृष्ठाया भूतले, वो कृष्णा की मर्जी से आए हैं, वो खुद एंजॉय करने नहीं आए हैं। तो उनको ऑनर मिले या इंसल्ट मिले, हंगर मिले या सेटिस्फेक्शन मिले,
स्लीप मिले या ना मिले उनको फर्क नहीं पड़ता। 22-22 घंटे ये ये 6 गोस्वामीज जो थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब 22-22 घंटे चैंटिंग करते थे। उसके बाद भी इनको भूख प्यास नहीं लगती। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन के बाद थोड़ी सी छाछ पीते थे और बोलते थे मैं तो बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन कर, बहुत इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ मैं। तो खाना पीना सोना, स्लीप, वेकफुलनेस, दे आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स दैट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स ट्रू। अभी एक्चुअली थोड़े दिन पहले विष्णु प्रेषर प्रभु घर आए थे, तो आर्यव ने उनसे क्वेश्चन पूछा, कहता प्रभु आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स कितने किए लाइफ में, एक दिन में? तो ही सेड कि 192 किए हैं। तो 192 राउंड्स करने के लिए हरिदास ठाकुर करते थे तो 22 घंटे लगते हैं। तो कहते 22 घंटे मैं कमरे के अंदर बैठा रहा और बस पानी था मेरे पास। तो कहते वाइफ एक दो बार फ्रूट्स लेके आई, मैंने एक दो ग्रेप्स खाए बस। और 22 घंटे के बाद ही सेड कि मुझे ना भूख लग रही थी ना मुझे प्यास लग रही थी, और मैं सांस भी ले रहा था तो ऐसे लग रहा था कि मुंह से महामंत्र निकल रहा। सो नो वंडर, नो वंडर कि ये लोग जो आचार्य हैं हमारे, वो बिना स्लीप, वेकफुलनेस, हंगर, सेटिस्फेक्शन, इन चीजों से परे थे, बिकॉज दे वर चैंटिंग 24 आवर्स। सो दे वर नॉट अफेक्टेड बाय दीज मटेरियल मोड। इसका दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या क्या कर सकते हैं हम? क्या बोल रहे हैं श्लोक में? सिमिलरली द डिवोटीज हु हैव टेकन द शेल्टर ऑफ द लॉर्ड डू नॉट बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय द मटेरियल क्वालिटीज। जो भगवान की शरण लेता है उसको, सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था ना एसएसआर में, क्या होता है? 3 ताप। 3 ताप नहीं लगते, 4 प्रॉब्लम्स, 3 ताप थे। तो हमने क्या बोला था कि 4 प्रॉब्लम्स तो देखो अब रहेंगी, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो रहेगा अब क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं। लेकिन जो 3 ताप हैं वो नहीं लगेंगे। कौन से थे 3 ताप, याद है किसी को? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। Miseries caused by other living entities, miseries caused by your own mind, and miseries caused by natural disturbances. Science of self realization. यस, वो आती रहेगी बार बार क्विज क्विज लेने। So those are the material miseries. So a devotee who has taken the shelter, उसको ये नहीं नहीं अफेक्ट होता वो इनसे। और ये तो हमने भी थोड़ा बहुत देख लिया है, ऑल्दो वी आर नॉट महाभागवतास और फर्स्ट ग्रेड डिवोटीज, बट स्टिल जितना भी हम कर रहे हैं हमें इतना पता चल गया है कि इन चीजों से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली ऑनर और इंसल्ट, हमें पता है तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमाने न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वी नो कि ये मटेरियल वर्ल्ड है ही ऐसा। कभी बिना मतलब के कोई रिस्पेक्ट देता है, कभी बिना मतलब के कोई इंसल्ट करके चला जाता है। और मोर ओवर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बिकम्स बिकम्स शार्प। भगवत गीता 10.10 में क्या बोलते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। तेषाम सतत युक्तानाम, जो मेरा नाम सतत ऑलवेज लेता है, ठीक है, और भजताम, मेरा नाम भजता है, प्रीति पूर्वकम, प्यार से, तो उसको मैं क्या देता हूँ? ददामी बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। तो यही बोल रहे हैं ना यहाँ पर वो भी। आ, कहाँ पर कहीं आया था इंटेलिजेंट वर्ड, यानी कि उनको वो इंटेलिजेंस आ जाती है जिससे उनको पता चल जाता है कि अ, उनको ये मटेरियल मिजरीज नहीं लगती। राइट? तो हमें हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है, हमें पता चल जाता है क्या सही है कि क्या गलत है। वी चूज। हमारे डिवोटीज के 90% डिसीजंस, मतलब 90 तो क्या मैं ऐसे नंबर बोलूं, बट their decision making becomes very very good because that buddhi is given by Krishna, and any decision which they take, जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो कृष्णा को सेंटर में रख के लेते हैं।
व्हेन यू कीप कृष्णा इन सेंटर, देन देर इज नो पॉइंट कि वो डिसीजन गलत हो सके आपका, राइट? सो राइट। और क्या था इसमें पॉइंट, को याद है? हाँ, एक और पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद, ये तो महाभागवत की बात हो गई। अब वो बोल रहे हैं जो हमारे जैसे डिवोटीज हैं, अगर वो भी 9.30 में क्या लिखा है, इवन इफ अनअलॉयड डिवोटी फाउंड टू बी फॉलन ड्यू टू प्रीवियस मटेरियल कंटेमिनेशन, उसकी कोई कोई गल अगर हम फॉल डाउन भी कर जाएं, अगर हम कोई रेगुलेटिव प्रिंसिपल गलती से तोड़ भी ले, तब भी कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग टिल टिल ही इज कंसिडर्ड, और his that is considered to be accidental और temporary, वो फिर से वापस आएगा because he is rendering unalloyed service to him। अगर हम सर्विस करते रहेंगे, अगर हम चैंटिंग करते रहेंगे, इवन इफ वी फॉल, स्टिल दैट फॉल इज नॉट, एक मतलब ऐसा उसको ये नहीं लेने कि वो बस तू तो क्या। No, वो जो छोटी, जो थोड़ी बहुत हमारे अनर्था रह भी गए हैं, दे विल वैनिश इन नो टाइम, दे विल वैनिश इन नो टाइम। और दैट वी हैव सीन ओवर द टाइम, राइट? हमारे अनर्था, अभी हम अनर्थ निवृत्ति स्टेज पे हैं, थोड़े 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 हमारे अनर्था धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ऑल दो बीच बीच में आते हैं, लेकिन फिर हम फिर वापस हम खड़े हो जाते हैं। फिर क्यों? बिकॉज हमने एक चीज हम करे जा रहे हैं, दैट इज डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, चैंटिंग। यस, अगर हम ये छोड़ देंगे, देन फिर फिर देखो कितनी तेजी से वापस आएंगे वो बैक टू अवर प्रीवियस लाइफ। सोच के भी अब तो डर लगता है कि हम क्या क्या करके आए हैं हम, राइट? तो अब एटलीस्ट हमें पता है कि ये बात सही है, और बीच में लैप्सेस होंगे, दैट्स ओके, दैट्स ओके, राइट? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? वर्स नंबर 39। तम्मेनेरे बलामूढ़ा स्त्रीणाम चा स्त्रीणां चानुव्रतं रहा अप्रमाणा विदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा। अब वो क्या बोल रहे हैं? द सिंपल एंड डेलिकेट वुमेन truly thought that Lord Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him as the supreme controller. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Prabhuji, I will try to read. Although Yes, it's very Mataji. small, can you just थोड़ा सा ऐसा आप बड़ा कर सकते हो, जूम कर बड़ा, सकते हो? हाँ बड़ा करता हूँ माताजी। हाँ, अभी बेटर है? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी कुछ गलती हो तो प्लीज माफ अरे नहीं कीजिएगा। प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। Even the transcendental wives of Lord Krishna did not know completely the unfathomable glories of the Lord. This, I'm sorry, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। I'm sorry प्रभु जी। नहीं नहीं, हमें नहीं आ रही, ठीक है माताजी। अच्छा अच्छा। Um, Yes, this ignorance is not mundane because there is some action of the internal potency of the Lord in the exchange of feelings between him and his eternal associates. The Lord exchanges transcendental relations in five ways: as proprietor, master, friend, son, and lover. And in each of these pastimes, he plays fully by the potency of Yog Maya. The internal potency, sorry, yeah, the internal potency. He plays exactly like an equal friend with the cowherd boys or even with the friends like Arjuna. He plays exactly like a son in the presence of Yashoda Mata. He plays exactly like a lover in the presence of cowherd themselves, and he plays exactly like a husband in the presence of the queens of Dwarka. Such devotees of the Lord never think of the Lord as supreme, but think of him exactly as a common friend, a pet, son, or a lover or husband, very much dear to heart and soul. That is the relation between the Lord and his transcendental devotee, who act as his associates in the spiritual sky.
where there are innumerable Vaikuntha, Vaikunt planets. When the Lord descends, he does so along with his encounter, with Enthused. his entourage to display a complete picture of the transcendental world, where pure love and devotion for the Lord prevail without any mundane tinge of lording it over the creation of the Lord. Such devotees of the Lord are all liberated souls, perfect representation of the marginal and or internal potency in complete negation of the influence of the external potency. The wives of Lord Krishna were made to forget the immeasurable glories of the Lord by the internal potency, so that there might not be any flaw of exchange. And they took it for granted that the Lord was a henpecked husband, always following them in lonely places. In other words, even the personal associates of the Lord do not know him perfectly well. So, what do the thesis writers or mental speculators know about the transcendental glories of the Lord? The mental speculators present different theses as to his becoming the cause of the creation, ingredients of the creation, or the material and efficient causes of the creation, etc. But all this is but partial knowledge about the Lord. Factually, as they are as ignorant as the common man. The Lord can be known by the mercy of the Lord only, and by no other means. But since the dealings of the Lord with his wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on the transcendental plane without material contamination. Mm. All right. So, thank you, Mataji. Hare Krishna. So, अब देखो, क्या बोल रहे हैं वो वर्ड? अबला, तम मिनेरे अबला। अबला क्या होती है? वो हिंदी 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 में भी हमने सुना हुआ है ना ये वर्ड, अबला, अबला नारी। Yes, अबला नारी, अब Abhilanori, yeah. बट इट्स नॉट, अबला नारी को बोलते हैं वीक। बट हियर प्रभुपाद इज चूजिंग द वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। ही इज सेइंग डेलिकेट। अबला मीन्स डेलिकेट। एंड मूढ़ा, अब आप सोच रहे हो कितना, दिस इज श्रीमद् भागवतम। क्वींस को गॉडेस ऑफ फॉर्चून, गॉडेस ऑफ फॉर्चून है वो, जो 16,108 रानी है, उनको वो क्या बोल रहे हैं? भागवतम क्या बोल रही है उनको? अबला बोल रही है और मूढ़ा बोल रही है। कैन यू इमेजिन? वर दे मूढ़ा? नो, व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, मूढ़ा इज सिंप्लिसिटी। मूढ़ा का मतलब ये नहीं है फूल। हियर प्रभुपाद इज सेइंग दे आर सिंपल एंड डेलिकेट। So the simple and delicate woman truly thought that Lord Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. कि उनको लगता था, एक्चुअल में एक एक रानी को लगता था कि कृष्णा जो है वो मेरे पास आए, और वो ऐसे ही थे, वो एक्सपैंड करते थे, वो एक एक के कक्ष में चले जाते थे। अब वो किसी के बाल संवार रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी के साथ सोए हुए हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं। तो एक एक रानी को यही लगता था कि ये सिर्फ मेरा है, मेरा फॉलोअर अनुव्रतम, एंड आई एम डोमिनेटिंग हिम। स्त्री नाम, वन हु इज डोमिनेटेड बाय हेनपेक्ट, तभी प्रभुपाद ने अंदर लिखा है ना हेनपेक्ट, हेनपेक्ड हस्बैंड। कृष्णा वाज अ हेनपेक्ड हस्बैंड। कैन यू इमेजिन? ही इज द सुप्रीम, ही इज द ईश्वरम, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और मतया, मतया क्या है? थीसिस, मतलब ऐसा उनका मानना था। दैट्स देयर थीसिस। थीसिस क्या होता है? थ्योरी, थ्योरी होता है ना, डार्विन थ्योरी। मतलब थ्योरी मतलब वो, उसमें फैक्ट कुछ नहीं होता, वो तभी उसको थ्योरी है। अब वो साइंटिस्ट उनको बोलने नहीं देते कि ये उसको वो थ्योरी का नाम दे दिया उन्होंने। तभी वो पीएचडी में जो करते हैं, थीसिस है जी ये। तो बिकॉज दैट इज नॉट अ फैक्ट, दैट इज जस्ट अ थ्योरी, जैसा उनको लगता है मतया। ऐसा उनको लगता है कि कृष्णा इज 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 अवर्स, और टू एन एक्सटेंट के वो, आगे प्रभुपाद ने लिखा है ना, फॉलोड देम एंड वाज डोमिनेटेड बाय देम, एंड
वो लोनली, इन अ लोनली प्लेस रहा। लोनली प्लेस मतलब वो उन्हीं के साथ ही हैं सिर्फ, बस, वो और किसी के साथ नहीं। सो दिस इज व्हाट दे वर थिंकिंग। एंड अगेन इट्स वेरी हैवी व्हाट ही इज राइटिंग, एज they were unaware of the extent of the glories of their husband। अब प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि आपको लगेगा कि चलो ठीक है जी, बाकियों को तो नहीं पता कृष्णा के बारे में, कृष्णा की ट्रांसेंडेंटल वाइफ्स को तो पता होगा उनके बारे में, उनकी अनफैथमेबल ग्लोरीज के बारे में। द आंसर इज नो, इवन दे डोंट नो। और किसके साथ कंपेयर किया उन्होंने क्वींस को? दिस इज श्रीमद् भागवतम। किससे कंपेयर कर रहे हैं वो? दे वर अनअवेयर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोरीज ऑफ देयर हस्बैंड एज एथीस्ट्स आर अनअवेयर ऑफ हिम। कैन यू इमेजिन? अगर ये श्रीमद् भागवतम हम ऐसे खोल के पढ़ने लग जाएं, हम पागल हो जाएंगे। अगर हमारे पास कमेंट्रीज ना हो, क्वींस को वो बोल रहे हैं कि वो एथीस्ट हैं, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि वो नास्तिक हैं क्वींस? कौन बोलता है ऐसे? जो कि वैकुंठा में है उनकी रानियां, वो एथीस्ट हैं। हाउ? जस्ट ऑन वन बेसिस दे आर सेइंग बिकॉज दे आर अनअवेयर। जैसे कि एथीस्ट दे डोंट नो अबाउट द लॉर्ड, सेम वे the queens also do not know about the Lord. But there is a difference. There is a difference. जो atheists हैं, they don't know about the Lord because they are under the influence of Maya. Whereas Mahamaya or Maya, external potency. Whereas these queens do not know about the glories of their husband because they are under the influence of Yog Maya. Yes, the internal potency of the Lord. सो बिकॉज ऑफ द इंटरनल पोटेंसी। और ये इंटरनल इंटरनल पोटेंसी क्यों एक्ट करती है? ताकि वो जो लविंग एक्सचेंज है वो ढंग से हो सके। कौन कौन से रसास हैं? अब प्रभुपाद ने यहाँ पर भी देखो कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं। द लॉर्ड एक्सचेंजेस ट्रांसीडेंटल रिलेशन इन 5 ways। वन इज प्रोपराइटर। अब ये सुना था पहले कभी कि प्रोपराइटर रस है? हम, प्रोपराइटर कौन सा रस है? दास्य का अपोजिट हुआ ना प्रभु। नो नो नो। दास्य दास, हम दास्य रस नहीं। वो मास्टर है, वो नेक्स्ट वन है माता जी। हाँ। मास्टर, मास्टर सर्वेंट, राइट? हम्म। तो प्रोपराइटर, ये कौन सा है? शांत रस। सांख्य। शांत रस, शांति रस। शांत रस, ओ यस, शांति शांत रस, रस। यस। उसमें क्या होता है? यू आर अ फ्लूट, यू आर अ फ्लावर। तो वो किसकी फ्लूट हो? कृष्णा, कृष्णा इज द प्रोपराइटर। किसका गार्लैंड है? कृष्णा इज द प्रोपराइटर, राइट? सो, और फ्रेंड साख्य रस, सन वात्सल्य रस, और लवर माधुर्य रस। ये तो हम सबको पता है, राइट? सो दिस इज, तो इन रसास को वी कैन फुली इंजॉय, we can fully enjoy these rasas when योग माया acts on it। और योग माया क्या करती है? योग माया डिवोटीज पे एक्ट करती है। वो उनको भगवान के जो ऑ एंड रेवरेंस है वो भुला देती है, तो ताकि वो उस रसा को फुली इंजॉय कर सके। आई थिंक इसमें ज्यादा अच्छे से दे रखा है सारा अर्थदर्शनी में। उन्होंने क्या बोला? देन डू द क्वींस whom he is always attached, being full of knowledge, know everything about Krishna? No, they also don't know him because perfect knowledge of those women arising from his Swarupa is covered by Yog Maya of the Lord in order to nourish the rasa। तो वो जो जो मेलो है, जो रसा है, उसको और नरिश करने के लिए। नहीं तो अगर कोई, अगर वो उन रानियों को लगेगा कि ये तो भाई, ये तो सुप्रीम क्रिएटर हैं, इन्होंने तो सारा जगत बनाया है, इन्हीं के कंट्रोल में, ये तो एक्सपैंड होके आ रहे हैं मेरे पास, तो 16,107 के पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, वो रसा में मजा आएगा क्या उनको? नहीं आएगा। ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म आई है मेरे पास। सोच के देखो, आपका हस्बैंड आपके पास आया है, पता चले डुप्लीकेट भी आया तो है। डुप्लीकेट आया है ये। तो that is why this Yog Maya acts upon them in order to, so that they can relish that rasa to the fullest,
right? So that is explained in this verse. These women consider their husband to be controlled by their love. वो कह रहे हैं कि ये तो मेरा ही है, ये हैंडपेक्ड है, ये मेरा है, इधर आ दो। कंट्रोल्ड बाय देयर वुमेनली नेचर, त्रीना, कि ये मेरे पास क्यों आया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई वुमेनली नेचर, या मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, बिकॉज ऑफ दीज। तो उनको ऐसा लगता है, ऐसा देयर मता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए ये मेरे पास आया है, विच इज ट्रू एज वेल। बट द मेन थिंग इज ऑल ऑफ देम, आगे 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 पढ़ते हैं एक्चुअली, बिकॉज दे हैव बीन बिविल्डर्ड, बिकॉज उनको लग रहा है कि वो उनको कंट्रोल कर रही हैं, and by their womanly nature, by their love, because they have been bewildered by the Lord to nourish their madhurya ras. This is very high level. I don't know मतलब कितना ये we can relate to it, but this is what is happening. हाँ, just as the people playing in the ocean, अब example से समझा रहे हैं तो समझ में आएगा. Just as the people playing in the ocean do not know the extent of the ocean, they do not know the extent of of अप्रमाणम विधा of their husband. जैसे हम ओशन में जब बीच पे जाते हैं, हमें जितना दिखता है हमें उतना ही लगता है, हमें पता होती है उसकी कितनी वेड्थ है, उसकी कितनी डेप्थ है, वी जस्ट इंजॉइंग इन द ओशन। ओशन छोड़ो, हमें स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, उसकी हमें डेप्थ वेड्थ ये नहीं पता होती। तो सेम वे दे डोंट नो कि कितना है, उनको बस पता है मेरा हस्बैंड और ये मेरा है, दैट्स इट। The intellectual functions of those who write scriptures, Mataya, engaged in defining the Lord, know very little because of various opinions such as Lord is the material cause of the universe. हमें क्या पता है? He is the cause of the all causes. He is the Lord controlling, efficient. ये सभी पता है हमें। ठीक है। तो इसीलिए हमें तो और भी कम पता है। Thus, such intelligent conclusions are actually ignorance. लो जी, इतनी इतने हम भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हो तुम तो इग्नोरेंट हो। दिस इज हु कृष्णा इज, राइट? बट वन कैन नॉट कंसिडर दोज वुमेन मटेरियल बिकॉज दे आर एंडोर्ड विद प्रेमा, दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन, एंड लॉर्ड इज controlled by their prem, since it has been said that they serve the Lord with prem. So that is the essence, that is the sense जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर दी है, कि और कोई रीजन नहीं है उनका वो स्त्रिया वाला वुमेनली नेचर और उनको कंट्रोल्ड, वो कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली लॉर्ड इज, व्हाई लॉर्ड इज डूइंग सो, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रेम, दैट इज द ओनली थिंग विच बाइंड्स द लॉर्ड। तभी बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहारतम अस्मि। That is only भक्त्या used. God is our Rema, nothing else. So, और ये रिलेशनशिप्स हमारे इधर भी, इवन इन आवर मटेरियल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का टॉपिक चला है, तो हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, हमारे मटेरियल रिलेशनशिप्स में भी। ऐसा कोई अपने बच्चे से ऐसा प्यार करता है कि तू तो आत्मा है, तू तो हाँ कभी मरी नहीं जा सकती, कभी सुखाई नहीं जा सकती, पानी में डुबोई नहीं जा सकती, इसीलिए मैं तुझसे प्यार करती हूँ बेटा। ऐसा नहीं होता ना। वी लव बिकॉज ही और शी इज अवर चाइल्ड। ठीक है। सो सेम वे, अगर वो तत्व तत्व और इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे, विल नेवर बी एबल टू लव। बट दैट डजंट मीन कि हम डायरेक्टली भी जंप ऑन टू द 10th कैंटो और प्रेमा के लेवल पे चले जाएं। फर्स्ट वी नीड टू हैव ऑ एंड रेवरेंस फॉर द लॉर्ड, ताकि हमें पता चले कि हु ही इज। देन स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली वी गो टू द लेवल ऑफ प्रेमा। जैसे अर्जुन, अर्जुन वॉज इन द साख्य रस, बट भगवत गीता में ही कंप्लीटली टर्न अराउंड इन 2.7, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तब वो क्या बोलता है 2.7 में? 2.7 से पहले तो वो बोले जा रहा है एज अ फ्रेंडली लेवल पे, वो बोले जा रहा है कृष्णा को, पूरा फर्स्ट चैप्टर अर्जुन ही बोल रहा है। बट देन ही सेज कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या बोल रहा है कि कार्पण्य दोष, मेरे ही में दोष था ये, कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। नाउ आई एम योर डिसाइपल, प्लीज एक्सेप्ट मी, आई एम, प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शन। तो ही वॉज इन द साख्य रथ। तो साख्य रस में दे फॉरगेट कि ही इज लॉर्ड। और वो बाद में बोलता भी है कि मैंने तो आपके साथ
मैं सेम बेड पे सोया हूँ मैं आपके साथ, आपसे पहले मैंने खाना खा लिया, इतना सब कुछ मैंने कैसे कर लिया कृष्णा? बिकॉज ही वॉज अंडर योग माया. then then you do such stuff. But we should have awe and reverence first, at least at our level. What is key take away from for us is we should first have the awe and reverence for the Lord. हमें पता होना चाहिए कि कौन है वो. And then slowly and slowly we should try to develop this loving relationship with the Lord, जो कि उन रानियों का था. We should come फ्रॉम महामाया के इन्फ्लुएंस से हटकर हमें योग माया के इन्फ्लुएंस में जाना है, योग माया के अंडर आना है. फ्रॉम एक्सटर्नल पोटेंसी से निकल के इंटरनल पोटेंसी में आना है. आई होप आई मेड सम सेंस. Prabhuji, to explain myself, I was just thinking in my head that example of Adya pretending to cook for me and I eating it. So वैसे ही Krishna reciprocate कर रहे हैं ना in a way with all the एग्जैक्टली. Maharanis that here I am just for you, all yours. यस. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मैंने वो कई बार पास टाइम सुना है, इसलिए मैंने अभी इस क्लास में नहीं सुना है. मैंने कहा बहुत रेपिटेशन हो जाएगी, कि जिसमें वो दुर्वासा मुनि और कृष्णा वाला, राइट, कि वो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि उनसे जाना होता है. यू नो दैट, राइट? यू Last रिमेम्बर? वाला part नहीं पता मुझे प्रभु जी उसमें. अच्छा. What is it? Can you अच्छा. explain shortly, like briefly? हाँ 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 हाँ. तो दुर्वासा मुनि वृंदावन आते हैं, तो गोपियां सब उनके लिए 56 भोग बना के जा रही होती हैं. तो वो ही वॉज यमुना के दूसरे साइड पर थे वो. तो यमुना कैसे क्रॉस करेंगे गोपियां? तो कृष्णा से पूछती हैं. तो कृष्णा बोलते हैं कि आप जाके बोलो यमुना को कि कृष्णा इज अ ब्रह्मचारी. तो वो बोलती है सारा दिन तो हमारे साथ घूमता है, और मैं हम जाके ये बोलेंगे कृष्णा इज अ ब्रह्मचारी? तो कहते नहीं नहीं, तुम बोलो जाके. तो वो बोलती हैं और यमुना उनको रास्ता दे देती है. वहां जाके 56 भोग वो दुर्वासा मुनि को खिलाती हैं. अब वापस भी आना था वहां से. वो वहां पे खा पी के दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि ठीक है चलो हो गया, अब जाओ. तो वो बोलती हैं हमें वापस जाने का रास्ता भी दो ना, पासवर्ड दो. तो वो बोलती हैं कि वो बोलते हैं, कहते बोल दो कि दुर्वासा मुनि तो सिर्फ दुर्वा पे जीता है, तभी मेरा नाम दुर्वासा है ना, कि मैं सिर्फ घास पे जीता हूँ. बोलती है तू 56 भोग डकार गया है, जैसा गुरु वैसा चेला. तो वो उधर कृष्णा ये बोल रहा है कि वो ब्रह्मचारी है, इधर तुम बोल रहे हो कि ये, तो वो पर दुर्वासा मुनि से कौन पंगा ले. वो बोलती हैं और वो फिर से रास्ता दे देती है. फिर वो आके कृष्णा से पूछती हैं कि ऐसा कैसे? तो कृष्णा ने बोला कि एज एज यू सेड कि ही डजंट नीड 16,108 रानियां. ही इज आत्मा राम. ऐसे ही सेम वे दुर्वासा मुनि डजंट हैव एनी अटैचमेंट, जो हमने परपुट में भी पढ़ा ना, कि उनकी अटैचमेंट नहीं है, मटेरियल अटैचमेंट नहीं है. दे आर जस्ट डूइंग फॉर देम. जैसे हम अगर आद्या खिलाएगी तो आप खा लोगे जस्ट फॉर हर, नॉट के बिकॉज यू वांट समथिंग फ्रॉम देम. सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज. यस. अमेजिंग ना, मतलब पहली बार अगर कोई पढ़ेगा कि उनको एथिस्ट के साथ कंपेयर किया है, आई मीन इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड द वे प्रभुपाद It's एक्सप्लेन्स इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल. so beautifully. जी, Yeah, yeah. हरि बोल. That's right. All right. Thank you. Hare Krishna Adya. हम कार्पण्य दोष अभी ये हम लोग रिसाइटेशन क्लास ज्वाइन किया ना प्रभु, सो वी आर लर्निंग दैट Oh, वर्स इज आवर दिस वीक्स wow. वर्स, सो Wow. टाइमली. Very nice. हरि बोल. Very nice. All right. ग्रंथराज हरे श्रीमद् कृष्णा. भागवतम की जय. श्रील जय. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. जय. हरि बोल. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. Hare Hare Krishna. Krishna. हरे कृष्ण.